أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Now we will discuss from concept symmetry. We are going to discuss the Woodward Hoffman rules, or Woodward Hoffman states that during chemical reactions or during cycloaddition reactions, the symmetry of the reactants and that of the products must be conserved. Mean ki symmetry will remain the same during chemical reaction. Realize that the symmetry elements of all orbital will preserve in the molecular orbitals of the रिएक्टेंट की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रिएक्टेंट्स के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है इनकी सिमेट्री और प्रोडक्ट के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं इनकी सिमेट्री आपस में मैच करेगा और such reactions are said to be symmetry allowed. और अगर match of symmetry of the reactants doesn't match to that of the product, then इसको हम symmetry disallowed reactions कहेंगे और symmetry forbidden कहेंगे. Thus, the symmetry of the transition states also must likewise be conserved. यानी कि जिस तरह के रिएक्टेंट की सिमेट्री प्रोडक्ट की सिमेट्री के साथ रिलेट करेगा, मैच करेगा, और इसको हम सिमेट्री कंजर्व एलिमेंट कहेंगे. सो इसी तरह इन द सेम सेंस जो है क्या है कि इन द सेम सेंस symmetry of the transition state must also be conserved with that of the reactants and products. तो conserved symmetry elements ये है कि elements of symmetry of the reactants transition state to that of the product ये हमेशा से क्या रहेगी, सेम रहेगी, और इसको हम symmetry conserved element कहेंगे. If a symmetry element is present through the course of the reaction, through the course आपका रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके ट्रांजिशन स्टेट बना रहे और फिर आगे जाके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. सो थ्रू द कोर्स ऑफ द रिएक्शंस आपकी सिमेट्री अगर क्या करे, कंजर्व रहे, इनके सेम रहे, then it is considered to be a conserved symmetry element. कहेंगे रिएक्शंस को हम conserved symmetry element reaction कहेंगे. And similarly anti-symmetric is said to be conserved. अगर रिएक्टेंट्स की जो सिमेट्री है वो भी एंटी सिमेट्रिक है ट्रांजिशन स्टेट, और थ्रू द कोर्स ऑफ रिएक्शंस जो है हमारा एंटी सिमेट्रिक रहा, तो आज हम कहेंगे कि एंटी सिमेट्री जो है वो एंटी सिमेट्रिक एलिमेंट्स जो है वो कंजर्व है, तो वो भी सिमेट्री अलाउड रिएक्शन कहलाता है. इफ इट इज मेंटेन्ड थ्रू यानी एंटी सिमेट्रिक element if maintained through the course of the reaction, that is in the reactants, that is in the transition state, and that is in the product state, then it is said to be as symmetry anti-symmetry elements conserved. और इसी तरह for instance, in the HOMO of a 4-pi conjugated system, C2 axis of symmetry is conserved in reactants, transition state. For instance, in the HOMO mean highest occupied molecular orbitals. The other one is LOMO, lowest unoccupied molecular orbital, said to be as LOMO, LUM. HOMO stand for highest occupied molecular. तो
ये मेरे पास 4 पाई कंजुगेटेड सिस्टम ये नीचे दिया गया है, और ये होमो 4 पाई कंजुगेटेड सिस्टम है। और यहाँ पे अगर आप देखें सिमेट्री एलिमेंट्स जब आप अप्लाई करते हैं तो दिस पोजेस C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि दो लूप्स ऊपर और यहाँ पे दो हाईली ऑक्युपाइड इलेक्ट्रॉन लूप्स नीचे हैं, तो इसको हम कहते हैं हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दिस इज अ 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स, और अगर आप इसमें इस पर से सिमेट्री एलिमेंट्स अप्लाई करते हैं, so here C2 axis of symmetry involved here। काइंडली अपना मोबाइल कैमरा ऑफ कर दीजिएगा, ऑन है मेरे ख्याल से। जी क्या नाम है, नाम भूल गया हूँ। गैलेक्सी एयरटेल, प्लीज अपना मोबाइल कैमरा ऑफ कर दीजिएगा, because I will upload this to our portal। ठीक है, अपना मोबाइल कैमरा ऑफ कर दीजिए। ओके जी, नेक्स्ट इज दिस इज अ 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, हाई ऑक्युपाइड होमो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, और यहाँ पे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर हम इसकी ओवरलैपिंग करते हैं तो ये इसी तरह और ये इसी तरह, यानी मीन कान रोटेशन, बिकॉज ऑफ कान रोटेशन bond formation will occur, which results the formation of what, which results the formation of cyclo cyclobutene system। okay, अब अगर यहाँ पे bond, this is a transition TS, mean transition state। transition state also have C2 axis of symmetry। अब reactants have C2 axis of symmetry, transition state have C2 axis of symmetry, and the same since जो product बन रहा है, product also have C2 axis of symmetry। so ये जो reaction है that is symmetry conserved reactions, क्योंकि symmetry elements जो है वो reactants के अंदर, products के अंदर, और इस सॉरी transition state के अंदर और products के अंदर जो है वो unchanged है। यहाँ भी C2 axis of symmetry in the reactors, products TS mean transition state also have C2 axis of symmetry, and products also have C2 axis of symmetry, so symmetry is conserved in this reaction, this 4 pi electron systems। ठीक है, so they आप समझ गए conserved symmetry element, conserved symmetry element से मुराद है कि molecular orbitals of the reactants and to that of the transition state and molecular orbitals of the products must possess the same symmetry elements, then the reactions are said to be as symmetry conserved elements। okay, now लेट अस, अच्छा ये तभी मुमकिन है जो कुछ मैं कह रहा हूँ आप लोगों की तब समझ आएगी जब इसे प्रीवियस लेक्चर्स का आपको समझ हो, तो क्योंकि वी हैव डिस्कस C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड सिग्मा सिमेट्री, तो वहाँ पे आपको अगर समझ हो तो यहाँ पे आप अगला जो आज वाला जो लेक्चर है आप आसानी से समझ सके, वरना मुश्किल है। Let us now let us examine the correlation diagram for a photochemical ring closure of 1,3-butadiene। हम देखते हैं this is 1,3-butadiene और इसमें हम रिंग क्लोजर करते हैं तो साइक्लोब्यूटीन बना रहे हैं, और यहाँ भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम इन्वॉल्व है। so 1,3-butadiene have 4 pi electronic systems, and this results the formation of cyclobutene। इस 1,3-butadiene को जब हम साइक्लोब्यूटीन में कन्वर्ट करते हैं तो इस पर से हम कोरिलेशन डायग्राम्स को क्या करते हैं, अप्लाई करें।
सो इसमें है वी हैव एज इट इज हाई होमो 4 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम, होमो हाई ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो psi 1 have high occupied molecular orbitals, and in the terminal p orbitals we have one electron, so here we have 2 electrons. So in a high energy orbitals, one of the electron will be excited from psi 2. ठीक है, psi 1 में psi 1 should have 2 electrons, ठीक है, psi 1 square, और psi 2 की तरफ हम जाते हैं तो फिर psi 2 में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, one of the electron will be excited towards the psi 3, तो psi 2 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और psi 3 के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा. So as a result we have psi 1 2, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, psi 2 1 because it have a single electron, and psi 3 should have 1 electrons. जरूरी काम तो नहीं है ना मेरे क्लास, हाँ अभी क्लास इन प्रोग्रेस है तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, तकरीबन 30 मिनट्स. इन्होंने को से खबर नन्ना को मलग इंतजार को बेबूफ. ओके जी, नेक्स्ट इज तो इसको मैं आपको समझाना चाह रहा था. Now let us examine the correlation diagram for a photochemical ring closure of the. In this case, one of the electrons in the reactant is excited from psi 2 to psi 3. क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन psi 1 में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, अब psi 2 की तरफ अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो psi 2 से psi 2 के दोनों 2 इलेक्ट्रॉन्स में नहीं रह सकते, एक इलेक्ट्रॉन psi 2 से psi 2 में रहेगा, जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन psi 2 से psi 3 की तरफ क्या है कि चला जाएगा. psi 3 की तरफ चला जाएगा. सो psi 2 से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा psi 3 की तरफ, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको मैं, जैसा कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, this is psi 1, it have 2 electron, psi 2 में दो इलेक्ट्रॉन चलेगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन psi 2 में ही रहेगा, जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन psi 1 की तरफ जंप कर जाएगा. तो हम कह सकते हैं psi 1 स्क्वायर, psi 2 1, psi 3 1 हम कह सकते हैं. तो इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाए psi 2 से psi 3 की तरफ, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, एक इधर, और psi 1 में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स. As a result, the electrons in the reactants are now filled in 3 orbitals. Reactants के जो इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 orbitals में filled हो जाते हैं, psi 1 में, psi 2 में और psi 3 में. यानी psi 1 में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, इस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, psi 2 में एक इलेक्ट्रॉन होगा और psi 3 में, which are represented as psi 1 square, psi 2 1, psi 3 1. मतलब क्या है कि psi 1 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, psi 2 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, psi 3 के अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन, जैसा कि यहाँ पे नजर है. psi 1 have psi 1 square because you can see here we have 2 electrons. Psi 2 we have single electron, and psi 3 we have single electron, and psi 4 have no electrons. So that's why इसको हम नहीं कंसीडर करते, बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ही नहीं है. ओरल सिमेट्री का रिस्पांस टू, अब ओरल सिमेट्री क्या बनेगी, तो psi 1 is symmetrical, psi 2 is anti-symmetric, and psi 3 is symmetric. तो as it is symmetric, so इसको हम कह सकते हैं S1 square या S square, क्योंकि psi 1 is symmetrical तो symmetrical square, psi 2 is anti-symmetrical तो A1, क्योंकि this have only one electron, and psi 3 is symmetrical
सो S and it have only one electron, तो S1। तो इसलिए हम S1 स्क्वायर सॉरी psi1 स्क्वायर की जगह S2 लिखते हैं, psi2 की जगह psi21 की जगह A1 लिखते हैं, और psi3 1 की जगह हम S1 लिखते हैं, क्योंकि दिस इज सिमेट्रिकल, दिस इज एंटी सिमेट्रिक एंड दिस इज सिमेट्रिक, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल क्यों है? अगर आप इसमें सिमेट्रिक एलिमेंट डाल देते हैं तो मिरर सिग्मा सिमेट्री शो करेगा, और इसको डिसरोटेशन से क्या होगा, बांड बनेगा, एक बांड बन जाएगा। अब ये जो प्रोडक्ट है इसकी सिमेट्री और इसकी सिमेट्री मैच कर रहे हैं, सो दिस इज सिमेट्रिकल। देखिए इमेजिनरी लाइन ड्रा करने के बाद ये साइड और ये साइड सेम है, तो ये सिमेट्रिकल है, और इसी तरह आपका प्रोडक्ट भी सिमेट्रिकल। तो इसलिए हम कहते हैं कि psi1 इज सिमेट्रिकल एंड दिस हैव 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी जगह psi12 RS2 लिख सकते हैं। इसी तरह ये अगर आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रा कर देते हैं तो इनके शेडेड लूप्स ऊपर, इनके शेडेड लूप्स नीचे, तो इसका मतलब ये कि ये एंटी सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिकल है, तो psi2 1 और इसकी जगह हम A1 लिख सकते हैं। इसी तरह psi3 की तरफ आ जाए तो यहाँ इमेजिनरी लाइन ड्रा करते हैं, तो ये ऊपर ऊपर, ये नीचे और नीचे, तो इसका मतलब ये दिस इज आल्सो सिमेट्रिकल। अब अगर ये सिमेट्रिकल है तो psi3 1, तो इसकी जगह हम S1 लिख सकते हैं। तो इसलिए लिखते हैं कि ऑर्बिटल सिमेट्रीज आर रिप्रेजेंटेड एज psi1 स्क्वायर, psi2 1, psi3 1, और इसी तरह सिमेट्रिक कॉरेस्पॉन्ड्स टू S2 A1 S1, इसलिए हम लिख सकते हैं, तो आप लोग समझ गए। The next is the latter matches with this 2 S1 A1. अच्छा, this is what? This is the symmetry of the reactants. S2 A1 S1. This is the symmetry of the reactants, and this is S2 S1 A1. This is the symmetry of the product. अब देखिए S2 S2, यहाँ पे S1 S1, यहाँ पे A1 A1, तो इसका मतलब ये कि ओवरऑल ज्योमेट्री ऑफ सिमेट्री ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो है दोनों आपस में क्या कर रहे, मैच कर रहे। तो सिमेट्री ऑफ द रिएक्टेंट देखिए, देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज व्हाट, ये लेफ्ट हैंड साइड, दिस शोज द सिमेट्री ऑफ द रिएक्टेंट्स, और ये वाला जो साइड है दिस शोज द सिमेट्री ऑफ द प्रोडक्ट। तो देखिए सिमेट्री ऑफ रिएक्टेंट इज S2 A1 S1, और सिमेट्री ऑफ द प्रोडक्ट इज S2 S1 और A1। तो अगर आप देखें तो यहाँ भी सिमेट्रिकल एंड एक एंटी सिमेट्री और 2 सिमेट्रिकल, यहाँ भी 2 सिमेट्रिकल एंटी सिमेट्रिकल। इसका मतलब ये ओवरऑल ज्योमेट्री अगर आप देखते हैं तो सिमेट्री ऑफ द रिएक्टेंट्स मैच विद द सिमेट्री ऑफ द प्रोडक्ट्स। मतलब ये कि 1,3 ब्यूटाडाइन रिएक्शंस में सिमेट्री कंजर्व्ड रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन क्या है, सिमेट्री कंजर्व्ड रिएक्शन। सो द लेटर मैचेस से मुराद द सिमेट्री ऑफ द प्रोडक्ट which is S2 S1 A1 that match with the symmetry of the reactant, that is S2 A1 S1. The overall symmetry of the product molecular orbitals, namely sigma pi pi stars, corresponds to sigma square pi 1 and pi star 1. The sigma bond is formed by the overlap of the terminal p orbitals of the side 2. This is possible by disrotation or closure with lid, which leads to bonding interaction between the two p-term orbitals under consideration. इसमें बिल्कुल यहाँ पे देखा जा सकता है कि इसके जो है इस ए
ठीक है। और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड जो बन रहा है ये वाला यू रोटेट करेगा और ये वाला ये डिसरोटेटरी फैशन से रोटेट करने के बाद सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो इसमें है सिग्मा और यहाँ पे पाई। तो इसलिए ये लिखते हैं कि symmetry of the product is sigma pi star and sigma star. So namely sigma pi and pi star corresponds to sigma 2 pi 1 क्योंकि जो symmetry है sigma यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स पाइज में एक है और सिग्मा पाई स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन्स। The sigma bond is formed by the overlap of the terminal p orbitals at the side 2. ये टर्मिनल p ऑर्बिटल एक टर्मिनल p ऑर्बिटल ये टर्मिनल मीन कि वो p ऑर्बिटल दैट प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द चेन। ये कार्बन चेन के एंड पे जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये टर्मिनल p ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। और ये जब बॉन्ड बनाएंगे सो बाय डिस रोटेशन ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड्स बना सकते हैं। टर्मिनल p ऑर्बिटल्स आफ्टर डिस रोटेशन can produce the sigma bond. This is possibly by disrotation closure, ring closure by disrotation of the p terminal orbitals occur, which leads to the formation of cycloalkenes, which leads to the bonding interaction between the two p orbitals under consideration. Thus, the disrotating closure of the pi conjugate its substrate occurs photochemically, as can be understood from the figure below. और इस फिगर को मैं आपको समझा चुका हूँ, समझाने की कोशिश कर चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। समझता न वाली क्लास इन प्रोग्रेस। अच्छा अच्छा, द ऑर्बिटल कोरिलेशन is waiting for okay, waiting for acceptance. Okay जी, the orbital correlation, conservation of symmetry and Woodward's-Hofmann rules. Conservation of orbital symmetry and Woodward-Hofmann rules. ओके ये एक दूसरा है जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है और इसके ऊपर जो है हम अप्लाई करेंगे। The orbital correlation diagram for a cycloaddition reactions can be drawn as discussed for electrocyclic reactions. To construct the correlation diagrams for cycloadditions, certain rules have to be put forward by Woodward and Hofmann, which are as follows. देखिए इसमें हम जो है correlation diagram draw करते वक्त we have to follow certain rules, and after following these rules you can easily draw a correlation diagrams as discussed in the previous slide. सबसे पहले define geometry for the proposed interaction. आपके पास जो proposed interaction है 2 पाई सिस्टम है, 4 पाई सिस्टम है, 6 पाई सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। इसके लिए आपने ज्योमेट्री proposed geometry एंड proposed interaction की ज्योमेट्री को आपने डिफाइन करनी है कि किस कौन सी ज्योमेट्री। और इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं, सिमेट्रिकल एलिमेंट्स कौन से, आया C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, आया सिग्मा सिमेट्री। तो इसको आपने अप्लाई करके देखना है और ये मैं बता दूँ। ड्रा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। फिर ज्योमेट्री डिफाइन करने के बाद फिर हम रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को ड्रा करते हैं और प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को ड्रा करते हैं। लेकिन इसको किस तरतीब से कि ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी की तरतीब से जो है हम ड्रा करते हैं कि जिसकी एनर्जी सबसे कम हो तो वो नीचे, और जिसकी एनर्जी लाइक psi1 हैव लोएस्ट एनर्जी, सो इसको हम पहले ड्रा करते मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को, psi2 के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को बाद में, और इसी तरह ऊपर psi3 के और psi4 के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हम ड्रा करते। तो जिनकी एनर्जी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लोअर होती है
इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को सबसे पहले ड्रॉ किए जाते हैं और फिर हाईएस्ट एनर्जी इसके ऊपर और फिर नेक्स्ट इसके ऊपर और इसके ऊपर आप लोग जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ड्रॉ करें। फिर तीसरा स्टेप कोरिलेशन डायग्राम ड्रॉ करने का ये है कि डिफाइन ईच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एज बीइंग इन सिमेट्रिक आइडेंटिटी। फिर आपके रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स के या ट्रांजिशन स्टेट के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है इनकी आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में ये देखना है कि आपके ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है ये सिमेट्रिक है या कि एंटी सिमेट्रिक है आफ्टर अप्लाइंग सिमेट्री एलिमेंट्स। तो फिर आप डिसाइड कर सकते हैं। चौथा स्टेप इन ऑर्डर टू ड्रा कोरिलेशन डायग्राम दैट इज पॉपुलेट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विद। फिर जो आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो आ जाए उसमें आप इलेक्ट्रॉन्स डाल दें कि भाई आपके लोएस्ट एनर्जी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगी, हाईएस्ट में इलेक्ट्रॉन आहिस्ता कम होते हैं। तो आप पॉपुलेट करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को इलेक्ट्रॉन से, यानी मीन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डाल दीजिएगा। और मॉलिक्यूलर जब आप इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो सबसे पहले ग्राउंड स्टेट वाले या लोवेस्ट एनर्जी स्टेट वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स रख देते हैं और इनको फिल भी कर देते हैं। मीन कि ज्यादा से ज्यादा एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने ग्राउंड स्टेट वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में रखते हैं। जैसा कि यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्राउंड स्टेट है और इसमें हमने पहले सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डाल दिए और मैक्सिमम। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप है कोरिलेट रिएक्टेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विद दोज ऑफ द प्राइम। जी जब आप चारों स्टेप्स अप्लाई कर देते हैं तो फिर आप इजीली एमोस ऑफ द रिएक्टेंट्स कोरिलेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं विद द एमोस ऑफ द प्रोडक्ट्स। एमोस से मुराद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ लाइक सिमेट्री। ठीक है, आप सिमेट्री लाइक भी हो सकती है, डिसलाइक भी हो सकती है, आप डिसाइड करें। अगर सिमेट्री लाइक करें तो इसका मतलब रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट की सिमेट्री लाइक करें तो इसका मतलब सिमेट्री अलाउड रिएक्शन। अगर सिमेट्री ऑफ रिएक्टेंट्स और सिमेट्री ऑफ प्रोडक्ट्स मैच ना करें तो इसको हम कहते हैं सिमेट्री डिसअलाउड रिएक्शंस। सॉरी। So correlate the reactant molecular orbitals with those of the product molecular orbitals of like symmetry. If all the bonding molecular orbitals of the reactants correlate with the bonding molecular orbitals of the product, the reaction is said to be symmetry allowed. So symmetry allowed. If the molecular orbitals in the reactant becomes an anti-bonding molecular orbitals in the product, आपके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है वो मैच नहीं करते, वो एंटी बॉन्डिंग आ जाएगा रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के साथ, तो ये सिमेट्री डिसअलाउड कहलाएगा। द रिएक्शन इज देन सेड टू बी सिमेट्री डिसअलाउड और सिमेट्री फॉरबिडन कहलाएगा। इसके लिए दो लफ्ज यूज होते हैं, सिमेट्री अलाउड जब दोनों सिमेट्री रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की मैच करें, और अगर मैच ना करें तो इसके लिए हम सिमेट्री फॉरबिडन या सिमेट्री डिसअलाउड रिएक्शंस कहेंगे। जैसा कि देखिए ये सिमेट्री ऑफ रिएक्टेंट्स और सिमेट्री ऑफ प्रोडक्ट्स, ये क्या है, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, सिमेट्री अलाउड। ठीक है, सिमेट्री एंटी सिमेट्रिक, दिस इज सिमेट्रिकल, सो सिमेट्री डिसअलाउड। तो ये प्रोडक्ट नहीं बना, तभी तो हमने दरमियान में ड्रा किया हुआ है क्योंकि these two are symmetry disallowed. हाँ अलबत्ता this is anti-symmetric and this one is also anti-symmetric, this one is, so ये anti-symmetry जो है allowed है और ये symmetry allowed है। ठीक है, so जब reactants और product की symmetry मैच करें तो allowed, ना मैच करें तो। Now we would like to draw the correlation diagram for 2 + 2 cycloaddition reactions, mean कि 2 pi electron system.
आपके पास एक रिएक्टेंट्स के अंदर भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और 2 p ऑर्बिटल्स, और दूसरे जो दूसरा रिएक्टेंट है उसमें भी 2 p ऑर्बिटल्स यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो दोनों जब आप साइक्लो एडिशन करते हैं यानी 2 पाई प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की आपस में एडिशन करके साइक्लो ब्यूटीन बनाना चाहे या ब्यूटेन बनाना चाहे तो हम रिएक्शन प्रोसीड कर सकते हैं। और इसके लिए कोरिलेशन डायग्राम्स को हमने इस तरह ड्रा कर, तो इस बारे में हम देखते हैं जी बिल्कुल। दिस इज 2 पाई 1 और ये दिस इज 2 पाई एंड 2 पाई, ये भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और ये भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सो 2 प्लस 2 कहेंगे और इसमें पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 ये इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट। So cyclo additions is the 2 plus 2 cyclo addition is the simplest case, and let's consider its occurrence under thermal conditions to begin with. Under photochemical conditions ये आपस में react नहीं कर रहा बल्कि under thermal conditions ये react कर रहा। Then there are 4 possible ways in which two components may in principle react to give the cycloadduct. Cycloadduct बनाने के लिए 4 पॉसिबल वेज, या तो एक जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो सिमेट्रिकल होगा, दूसरा भी आपका सिमेट्रिकल, दोनों सिमेट्रिकल होंगे, दोनों एंटी सिमेट्रिकल होंगे, पहला सिमेट्रिकल होगा दूसरा एंटी सिमेट्रिकल होगा, पहला सिमेट्रिकल होगा पहला एंटी सिमेट्रिकल होगा दूसरा सिमेट्रिकल होगा। मीन के कितने केसेस बन गए 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में? 4 केसेस बन सकते हैं। 4 पॉसिबल ज्योमेट्री इसके आ सकती है, या तो 2 पाई सिमेट्रिकल प्लस 2 पाई सिमेट्रिकल यानी 2 पाई एस प्लस 2 पाई एस यानी दोनों के दोनों सिमेट्रिकल, 2 पाई ए प्लस 2 पाई ए यानी दोनों के दोनों एंटी सिमेट्रिकल, 2 पाई एस प्लस 2 पाई ए यानी पहला 2 पाई सिस्टम सिमेट्रिकल होगा दूसरा एंटी सिमेट्रिकल, 2 पाई एस प्लस 2 पाई ए। और चौथा केस जो बनता है दैट इज 2 पाई ए प्लस 2 पाई एस यानी पहला एंटी सिमेट्रिकल दूसरा पाई सिस्टम सिमेट्रिकल है। सो इसलिए कहते हैं कि जब हम 2 प्लस 2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस करते हैं तो इसमें 4 पॉसिबल वेज बनते हैं इन व्हिच द टू कंपोनेंट्स यानी कंपोनेंट्स टू 2 पाई प्लस 2 पाई है, लेकिन दिस टू कंपोनेंट्स गिव अस 4 पॉसिबल वेज। एक है पाई 2s या 2 पाई एस या पाई 2s, पाई 2s या 2 पाई एस के 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकल दूसरा 2 पाई एस दूसरा भी सिमेट्रिकल, 2 पाई ए प्लस 2 पाई एस, this is not n, this is pi, तो एक एंटी सिमेट्रिकल दूसरा सिमेट्रिकल, 2 पाई एस पहला सिमेट्रिकल 2 पाई ए दूसरा एंटी सिमेट्रिकल, यहाँ पे पहला एंटी सिमेट्रिकल दूसरा सिमेट्रिकल, यहाँ पे पहला सिमेट्रिकल दूसरा एंटी सिमेट्रिकल, एंड दिस इज 2 पाई ए पहला एंटी दूसरा भी एंटी, तो 2 पाई ए प्लस 2 पाई, सो 2 पाई एस 2 पाई एस 2 पाई ए 2 पाई ए, और एक में जो है एंटी सिमेट्रिकल पहले दूसरे में बाद में दूसरे में पहले में, सो आप जो है आसानी से 4 पॉसिबल वेज। However, the geometric constants below fit load any interfacial addition between the two components, thereby limiting the approach of the two components to superficial mode. Let's analyze the symmetry elements present in molecular orbitals of the two reactors. एक रिएक्टेंट ये है नीचे और दूसरा रिएक्टेंट ऊपर, और उस पर अगर आप पूरा सिमेट्रिकल लाइन ड्रा कर देते हैं, सो ये इसके बिल्कुल सामने, ऊपर ऐसा ऊपर नीचे नीचे, ये ऊपर ऊपर अनशेडेड दोनों ऊपर अनशेडेड दोनों नीचे, मीन के मिरर्स इमेज ऑफ सिमेट्री इस पर हम वर्टिकली अप्लाई कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी मिरर इमेज ऑफ सिमेट्री अप्लाई कर सकते हैं, मीन की सिग्मा सिमेट्री अप्लाई कर सकते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ऊपर यानी 2 पाई 2 plus 2 electronic system के ऊपर। Let us look at the photochemical 2 plus 2 cyclo addition reaction. In this case,
one electron is promoted from pi 2 to pi 3 orbitals. जी बिल्कुल, यहाँ आप देख सकते हैं पाई 1 में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर पाई 2 में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा पाई 3 की तरफ, तो पाई 2 should have 1 and पाई 3 star should also have 1 electron and पाई 4 star don't have any electron, just like psi 1 psi 2 psi 3 psi 4 में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, एक्साइटेड हो जाएगा पाई 3 स्टार की तरफ। तो ये सिस्टम है पाई 1 2 पाई 2 1 और पाई 3 स्टार 1 हम लिख सकते हैं। और इनकी जो सिमेट्रीज है वो आप देख सकते हैं, इस टू क्योंकि सिमेट्रिकल है दोनों, यानी नीचे वाला जो 2 पाई है ये भी सिमेट्रिकल, दूसरा भी सिमेट्रिकल, तो हम कहते हैं 2 पाई s 2 पाई s। so this is what this is 2 pi s 2 pi s of reactant भी 2 pi is 2 pi s, product भी 2 pi is 2 pi s। so ये पॉसिबल है, सिमेट्री है। यहाँ भी रिएक्टेंट 2 pi 2 pi 2 is 1 a1 और pi 3 star a1 is 1 और ये इसी तरह से। थोड़ा सा मैं वापस चला जाता हूँ ताकि आप समझ जाए। Cyclodation in this case electron is promoted to pi 2 to pi 3 बिल्कुल orbital, as a result of which the orbital pictures becomes completely different. Now then pi 1 pi 2 and pi 3 star, देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन। Orbitals of the reactants are related by symmetry to symmetry of the products is sigma 1 sigma 2 and sigma star 3 orbitals of the cyclized product। तो रिएक्टेंट की तरफ जो है that is pi 1 pi 2 pi 3 star और प्रोडक्ट की जानब sigma 1 sigma 2 and sigma 3 star orbitals of the cyclized product। As a result, the energy barrier is drastically reduced and the reaction now becomes allowed with the formation of product in the excited states। Therefore 2 plus 2 cycloaddition can be said to be photochemically allowed। photochemically allowed है, ये reaction possible है क्योंकि ये symmetry allowed, ये भी symmetry allowed, ये भी symmetry allowed है, reaction is possible। मुझे यकीन है कि थोड़ा बहुत तो समझ आ गया होगा, लेकिन इसमें जो कोरिलेशन डायग्राम है स्टिल यू पीपल शुड हैव प्रॉब्लम्स। तो आप लोगों का कोर्स जो है अब ख़त्म होता है इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट दिस कोरिलेशन डायग्राम्स बिकॉज आई एम श्योर, क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है कोरिलेशन डायग्राम्स को। तो इस कोरिलेशन डायग्राम्स को इंशाल्लाह अगले हफ्ते क्लास हम लेंगे और दोबारा से डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। नाउ if any one of you have any question please ask। जी किसी को कोई शक या सवाल? ज़ैनब any question? No, sir. ओके जी हाजिरी ले लेते हैं। आबिद जलाल is present, Ayman is present, Asifur Rahman is present, Glexia do I think so, Shabana or Halima is present। Who is she, Halima or Shabana? Glexia, tell me। Glexia, tell Halima or Shabana? सर हलीमा है। हलीमा है, ठीक है जी। और इसी तरह हमजा is present, Shad Muhammad is present, and now we have जी हमजा is present and ज़ैनब का तो मैं हाजिरी ले चुका हूँ। ये गैलेक्सी अटेन 2 है। शबाना प्रेजेंट और एब्सेंट? शी इज रेगुलर। ओके सॉरी, शबाना तो यार वो तो 6th सेमेस्टर में, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके जी, किसी को कोई शक हो तो ठीक है, मैं कर देता हूँ दूर शक, और अगर नहीं तो मैं लाइन हो रहा हूँ। ओके जी ठीक है,
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है, अगले हफ्ते फिर से इस टॉपिक को हम रिपीट करते हैं, आप लोगों का कोर्स खत्म होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।